Good afternoon. Welcome to the viewers. Today I am going to discuss ब्रांच अकाउंटिंग. सबसे पहले मैं आज आपके लिए ब्रांच अकाउंटिंग से संबंधित अकाउंटिंग की जानकारी लेकर आए हैं. जैसा कि हम जानते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज की बिगिनिंग या शुरुआत होती है फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स एंड एंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एट कंजम्पशन फेज. कंजम्पशन मेड बाय कंज्यूमर्स. Objective of producer is to earn more and more profit and to produce at minimum cost. All to achieve their objective, producers try to supply the goods and services to consumers in different way. First process for delivering goods from producers and consumer is through middleman. Second way is commission agent, through commission agent, and third one is through branches. If the goods supplied from producers to consumers, from producers and up to consumers through middleman, in this case there are so many persons directly engaged in delivering goods, such as agent, agency, wholesalers, retailers, and all engaged persons having objective to earn profit. So producers not in position to succeed in their objective. That's why another way of delivering goods is being adopted, and that is through commission agent. In this case, producers by self producing the goods and arrangement to sell such commodities and services through their commission agents, means outsider persons. In this case, there are two separate or different persons engaged. So the objective to produce at minimum cost and of best qualities is difficult to achieve, because producers are in position to explain or discuss their commodities according to the need of the consumers or consumers' satisfaction. So another process is being in use, popularly three way of supplying goods from producers to consumers nowadays in business field. Third one is branches. In this case, producers produces their commodities and services and sold it through their own branches, self-established branches. In all cases, finally goods are being delivered to the consumers. In case of middleman, retailers sold to consumers. In case of commission agent, consignee sold to the consumers. In case of branches sold to directly to the consumers.
branch is just like branches in a tree. In the field of business, branch is just like found in a tree. Origin of such टहनी or branches only from main body or part of the tree. Life of such branches totally depends on such main part of tree. जिस तरीके से पेड़ में टहनी की स्थिति है, पोजीशन है, बिजनेस में भी शाखा की बिल्कुल वही स्थिति है। बिजनेस में प्रोड्यूसर हमारा प्रोडक्शन करता है और थ्रू देयर ओन ब्रांचेस, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड ब्रांचेस, सोल्ड इट टू कंज्यूमर्स, ग्राहक के पास सामानों को बेचता है। टोटली हेड ऑफिस, producers is represented as head office in this case. And their shops at different places near to consumers is known as branches. Branches sold to the consumers directly. Ultimate objective of head office to earn profit. इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और इस उद्देश्य से जो हम अकाउंटिंग बनाते हैं उसे हम ब्रांच अकाउंटिंग कहते हैं। पॉपुलरली नोन एज ब्रांच। Branch accounting prepared by head office for their individual branches. There are so many branches of head office. So many commodities in practice in the field of business are sold through branch process, such as Bata Shoe Company. Bata Shoe Company produces the shoes, their shoes, and sold it through branches in different cities, even outside country. Another example of branch transactions are DCM, Delhi Cloth Mills. In big cities, there are outlet of Delhi Cloth Mills production is known as DCM shops, or in other words, branches directly sold to the consumers. Hello dears, welcome. Today I am going to present branch accounting. As we know, business transactions started from production activities and ends at consumption activities. Production by producers and consumptions by consumers. जैसा कि हम जानते हैं, बिजनेस का लेन देन की शुरुआत होती है उत्पादन के कार्य से और अंत होता है उपभोग या कंजम्पशन के कार्य पर। प्रोडक्शन का काम प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है, जबकि कंजम्पशन का काम कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है। जैसा कि अभी हम जानते हैं, प्रोड्यूसर्स का मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट मोर एंड मोर and to produce at minimum cost. किसी भी उत्पादक का मुख्य उद्देश्य होता है
अपने उत्पादन को कैसे सस्ते में बनाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। इन कारणों से सामानों को वो प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमशन प्लेस तक, कंज्यूमर के पास तक पहुंचाने का काम करता है। फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड अप टू कंज्यूमर्स देयर आर डिफरेंट मीन्स और प्रोसेस to deliver the goods and services. Number one process is through middleman. Number two process is through consignment. Number three process is through branches. उत्पादक के पास से उपभोक्ता तक सामान पहुंचाने का, सामान और सेवाओं को पहुंचाने के बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे प्रचलित तरीके हैं आज के बाजार में, आज के प्रचलित बाजार के युग में। एक तरीका है मध्यस्थों के माध्यम से सामानों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। दूसरा तरीका है कंसाइनमेंट या प्रेषण के माध्यम से सामानों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। और तीसरा और अंतिम तरीका है, तीसरा प्रचलित तरीका है कि शाखाओं के माध्यम से हम कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को सामानों को पहुंचाएं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम मिडिलमैन का सहारा लेते हैं तो मिडिलमैन में बहुत सारे पर्सन्स इंगेज होते हैं, सच एज एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, और इनका मकसद है कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। डिफरेंट पर्सन्स इंगेज होने के कारण हर कोई अपना प्रॉफिट लेगा और रिजल्ट में कंज्यूमर्स के पास सामान सस्ता नहीं, महंगा हो जाएगा। जैसा कि बतलाया, इनका उद्देश्य होता है, मिडिलमैन एजेंसी और होलसेलर्स का उद्देश्य एक ही होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। अगर उसके लाभ में कुछ कमी नजर आती है या लाभ नहीं नजर आता है तो वह मिलावट करने में, अडल्ट्रेशन में भी कोई परहेज नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप जो इसका मकसद था, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता की संतुष्टि, वो फुलफिल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इन्हीं कारणों से हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स दूसरे रास्ते को अपनाता है। दूसरे रास्ते में प्रोड्यूसर्स सीधे सामान को कंसाइनमेंट करता है, प्रेषण करता है, भेजता है कि आप सीधे कंज्यूमर्स को सामान बेचिए। इस कंडीशन में जो दो पार्टी है, एक कंसाइनर है, प्रेषक, सामान भेजने वाला, और एकदम बाहर का पार्टी है, बाहर का पक्ष है, जिसे हम कंसाइनी कहते हैं, जिसका काम सामान लेकर के बेचना है और इस सर्विस के लिए कमीशन चार्ज करता है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कंसाइनी आउटसाइडर है, बाहरी व्यक्ति है। प्रोड्यूसर्स का कंट्रोल प्रोडक्शन के बाद नहीं रहता है, इसीलिए प्रोड्यूसर्स कभी कभी इस प्रोसेस को नहीं अपना करके तीसरा प्रोसेस अपनाता है, जिसमें कि प्रोडक्शन भी अपने कंट्रोल में रखता है और गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए भी पूरा नियंत्रण अपने पास रखता है। इस प्रोसेस को थ्रू ब्रांचेस कहते हैं। इसमें प्रोड्यूसर्स अपने स्थान से अलग हट करके कंज्यूमर्स के पास पहुंच करके डिफरेंट ब्रांचेस से, अनेक शाखाओं से, अपने अनेक दुकानों से सामान को सीधे कंज्यूमर के पास पहुंचाने की व्यवस्था करता है। इस स्थिति में प्राइस भी कंट्रोल रहता है, क्वालिटी भी कंट्रोल रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी खुद कर रहा है, सेलिंग एक्टिविटीज भी इसी के कंट्रोल से, इसी के एम्प्लॉइज से, इसी के दुकानों से, इसी के मैनेजमेंट से। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कॉस्ट और क्वालिटी दोनों नियंत्रित रहता है और जो मकसद है प्रोड्यूसर्स का वो फुलफिल हो पाता है। नाउ ब्रांच अकाउंटिंग। जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रोड्यूसर्स के पास से सामान ब्रांचेस को भेजा जाता है और कंज्यूमर्स को फिर वो डायरेक्ट सप्लाई करता है, बेचता है। प्रोड्यूसर्स को इस अकाउंटिंग प्रोसेस में हम हेड ऑफिस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, हेड ऑफिस नाम देते हैं।
जिसका कि उद्देश्य होता है लाभ कमाना, अंतिम मकसद है लाभ कमाना। जैसा कि हम जानते हैं प्रोड्यूसर्स का अंतिम मकसद है लाभ कमाना, बट नेचुरल हेड ऑफिस का ही मकसद है लाभ कमाना। और इन कारणों से वह डिफरेंट ब्रांचेस के माध्यम से कंज्यूमर्स को सामान बेच रहा है। इन डिफरेंट ब्रांचेस से सामान बेचने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने के लिए से जो प्रॉफिट हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए जो अकाउंटिंग बनाता है उसे हम ब्रांच अकाउंट कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इसका मकसद है लाभ और हानि जानना। और ये अकाउंटिंग प्रोसेस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस प्रिपेयर किया जाता है फॉर इंडिविजुअल ब्रांचेस। अब ब्रांच की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म जानना चाहिए था कि ब्रांच है क्या चीज। जैसा कि हम देखते हैं पेड़ में टहनी का जो स्थान है, जो ब्रांचेस हैं, टहनी है किसी भी ट्री में, उन टहनी को ब्रांचेस का ओरिजिन होता है फ्रॉम मेन पार्ट ऑफ द ट्री, और लाइफ भी उसका सस्टेन करता है फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द ट्री। एग्जैक्टली वही चीज बिजनेस में ब्रांचेस का है। ब्रांचेस स्टार्टेड बाय हेड ऑफिस और प्रोड्यूसर्स, इसकी ओरिजिन भी उसी से होती है, इसका लाइफ भी उसी से होता है, अंत भी उसी के कंट्रोल से होता है। यानी टोटल कंट्रोल ब्रांचेस पर हेड ऑफिस का रहता है। जहां तक ब्रांच जो एग्जिस्ट कर रहा है पूरी दुनिया में, हम उसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन या उसको डिफरेंट टाइप्स और क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला टाइप होता है डिपेंडेंट ब्रांच। जैसा कि हम जानते हैं ब्रांच इटसेल्फ बाय नेचर ऑलवेज डिपेंडेंट ब्रांच। अभी बताएं पेड़ में जो टहनी का स्थान है टोटली डिपेंड्स अपॉन मेन पार्ट और बॉडी ऑफ द ट्री। एग्जैक्टली बिजनेस में भी ब्रांचेस टोटली कंट्रोल्ड एंड अंडर प्रोड्यूसर्स और हेड ऑफिस। बिल्कुल वही स्थिति है। इसका मतलब साफ हो गया कि ब्रांचेस टोटली डिपेंड अपॉन हेड ऑफिस। ऑल सच ब्रांचेस which are totally depends upon head office are dependent branch. Second is independent branch। जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। अब हेड ऑफिस और ब्रांचेस डिफरेंट प्लेसेस में होते हैं। हेड ऑफिस अपने प्लेस के अकॉर्डिंग रूल फ्रेम करके ब्रांचेस को काम करने के लिए कहे तो स्वाभाविक तौर पर सक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक स्थान का अपना डिफरेंट पोजीशन होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ लिबर्टी देना जरूरी होती है। तो अगर हेड ऑफिस अपने ब्रांचेस को कुछ लिबर्टी देता है कि आप अपने प्लेस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे ब्रांचेस को इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। ब्रांच नेवर टोटली इंडिपेंडेंट, ऑलवेज अंडर कंट्रोल ऑफ हेड ऑफिस, बट देयर इज सर्टेन लिबर्टी टू टेक डिसीजन फ्रॉम देयर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस और नीड ऑफ द प्लेसेस। अपने स्थान की जरूरत के अनुसार से वे अपनी शाखाओं को कुछ आजादी देते हैं कि आप निर्णय ले सकते हैं। ऐसी शाखाओं को इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। तीसरा रूप है हमारा होलसेल ब्रांच। जैसा कि जानते हैं फॉर द पर्पस टू एक्सपैंड द बिजनेस जनरली हेड ऑफिस एक्सटेंडेड देयर ब्रांचेस। हेड ऑफिस अपनी शाखाओं को बनाता है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। तो अब अगर हेड ऑफिस जिस नेचर का काम करता है सेम नेचर का काम उसका ब्रांचेस भी करे। जैसे मान लीजिए इस स्थान पर हेड ऑफिस को एस्टैब्लिश हमने किया है। हेड ऑफिस सामानों को बेचने का काम करता है डायरेक्ट टू दी होलसेलर्स। तो नेचुरली हम होलसेलर्स को सामान बेचेंगे तो होलसेल में बेचेंगे, थोक मात्रा में बेचेंगे, अधिक मात्रा में बेचेंगे। अब इस एरिया को तो हम कवर कर लिए। अब इससे अलग हट करके दूसरे तीसरे चौथे डिफरेंट प्लेसेस में हम ब्रांचेस एस्टैब्लिश करते हैं। तो ब्रांचेस को भी हम यही कहेंगे कि आप हमारा सामान होलसेल बेसिस पर ही बेचिए। अपने एम्प्लॉय का अपने कंट्रोल में है तो हम भी होलसेल का काम कर रहे हैं, हमारा ब्रांचेस भी होलसेल का काम कर रहा है। ऐसे ब्रांचेस को हम होलसेल ब्रांच कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन ब्रांच, विदेशी शाखा। अब विदेशी शाखा का मतलब होता है जहां पर हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच में दो डिफरेंट कंट्री आ जाता है। ऑल सच ब्रांचेस इज नोन एज फॉरेन ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल बाटा सू के ब्रांचेस
इंडिया में भी हैं, प्रोडक्शन इंडिया में होता है, लेकिन इसकी शाखाएं कुछ विदेश में भी है, इंग्लैंड में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, पाकिस्तान में भी। तो वो शाखाएं जो आउटसाइड इंडिया है, ऑल सच ब्रांचेस इज नोन एज फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग में एक डिफिकल्टी आती है, क्योंकि हम सामान भेजेंगे ब्रांच को, एक्सपेंस करेंगे, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस जो हमारी जानकारी में है वो इंडियन करेंसी में है, और आउटसाइड कंट्री जो हमारा ब्रांच है वो जो अपना डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारे पास में भेजेगा, नेचुरली उस कंट्री के करेंसी में आएगा। इस कंडीशन में हम दोनों कंट्री के करेंसी से अकाउंटिंग बनाएंगे तो कोई रिजल्ट या सही रिजल्ट आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले हम उस ब्रांच के कंट्री के करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं उसके वैल्यू को, और तब फिर हम अकाउंटिंग बनाते हैं। ये डिफिकल्टी है फॉरेन ब्रांचेस में, फॉरेन ब्रांचेस की अकाउंटिंग। जैसा कि हम जानते हैं ब्रांच अकाउंटिंग का मकसद होता है प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना जानना, और किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के लिए एक निश्चित पीरियड या अवधि के बाद अकाउंटिंग बनाई जाती है। यहाँ पर भी ब्रांच अकाउंटिंग जो बनाया जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, मकसद है हमारा प्रॉफिट लॉस, इसीलिए एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद बनाया जाए। वो समय कितना होगा टोटली डिपेंड्स अपॉन हेड ऑफिस। अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा है या हेड ऑफिस की मर्जी है, एवरी 6 मंथ्स में कैलकुलेट कर सकता है, 9 मंथ्स में कैलकुलेट कर सकता है, ईयर के एंड में कैलकुलेट कर सकता है। इस बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं in between head office and their individual branch, all are recorded in branch accounting. जिस दिन भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस दिन तक अगर हेड ऑफिस ब्रांच के बीच में जितने भी लेन देन हुए हैं सभी की अकाउंटिंग, सभी का लेखा जोखा हम ब्रांच अकाउंटिंग में लिखते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए जानना, व्हाट आर द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजेक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस, इंडिविजुअल ब्रांचेस। नंबर 1 ट्रांजेक्शन इज एसेट्स परचेज। सबसे पहले हम ब्रांच के स्थान पर एसेट्स को क्रिएट करेंगे, परचेज करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, मशीनें खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे। और आज के एज में ये सब चीज हो सकता है वेल फर्निश्ड हमें मिल जाए और इसके लिए रेंट पे करना पड़े, तो कंपलसरी नहीं है ये सब हम एसेट्स क्रिएट करें। वेल फर्निश्ड हाउस हमें रेंट पे करके भी लिया जाए, हम ले सकते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा ये है। दूसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स सप्लाइड। गुड्स सप्लाइड जनरली मीन्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच। जब ब्रांच हमारा दुकान एस्टैब्लिश हो गया तो हम सामान भेज देंगे अपने एम्प्लॉय के साथ कि जाइए बेचिए। तो भेजने में भी हमारा खर्च होगा, पहुंचने के बाद भी उसे खर्च करना पड़ सकता है, अपने व्यवस्था तक, अरेंजमेंट तक, दुकान तक, ब्रांचेस तक लाने में, सेल के अरेंजमेंट में भी बहुत सारा खर्च हो सकता है। तो इस तरीके से जो एक्सपेंसेस है बोथ साइड, दोनों पार्टी की तरफ से करने की जरूरत पड़ती है, हेड ऑफिस और ब्रांचेस। जैसा कि हम जानते हैं ब्रांच हमारा एम्प्लॉई अपने पॉकेट से वो नहीं खर्च करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉई को सामान भी देते हैं, कुछ पॉकेट में पैसा भी दे देते हैं, कुछ एक्सपेंस के लिए पैसा भी दे देते हैं, जिससे कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस को मीट कर ले और आसानी से हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट। तो इस तरीके से ब्रांचेस के द्वारा खर्च किया जाए, चाहे हम खर्च करें, हेड ऑफिस खर्च करें, इन ऑल केसेस अमाउंट्स पेड बाय हेड ऑफिस। So entire expenses is the expenses of head office. Next item of transaction is goods supplied by branch to head office or goods supplied return. जो यूज का सामान नहीं है नेचुरली ब्रांच को रखेगा अपने पास, उसे वापस कर देगा, वहां पर नहीं बिक पाने का ऐसा चांसेस या डिफेक्टिव आ गया, कुछ आ गया तो गुड सप्लाई रिटर्न कर सकता है। सब व्यवस्था हो गई तो सेल करेगा। सेल या तो कैश सेल में करेगा, अगर परमिट है हेड ऑफिस की तरफ से परमिशन है तो क्रेडिट में भी सेल कर सकता है। जैसा कि हम बताएं अकाउंटिंग फॉर फिक्स पीरियड होगा तो सेल जो है डिफरेंट वे में और सो मेनी टाइम्स होंगे। तो अगर कैश सेल किया तो क्या पैसे की
प्राप्ति हो गई ब्रांचेस को, फिर उस आदमी से कोई कंसर्न नहीं है, व्यक्त संबंध नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ क्रेडिट सेल सो मेनी टाइम्स जब हम सेल करेंगे तो इन द मीन टाइम उस पीरियड के अंदर में हो सकता है जिसको भी हम सेल किए वो पैसा भी थोड़ा हो सकता है, कुछ पैसा ड्यूज भी हो उसके हैं। इस तरीके से क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक पार्टली कैश रिसीव्ड है और दूसरा पार्टली बैलेंस है। पार्टली बैलेंस इज नोन एज क्लोजिंग डेटर, देने वाला है हमको। इसके बाद जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, पीरियड हमारा एंड हो जाएगा, तो जरूरी नहीं कि सब सामान बिक गया हो, कुछ क्लोजिंग भी हो सकता है। डेटर्स में भी हम देखें क्लोजिंग वैल्यू हो सकता है। अगर हमने एसेट्स क्रिएट किया है तो उसका भी क्लोजिंग वैल्यू हो सकता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाते हैं तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में यही सब क्लोजिंग वैल्यू हमारा ओपनिंग वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हमने ब्रांच स्टार्ट किया तो 1 to 6 ट्रांजेक्शन हम पाएंगे, लेकिन अगर ब्रांच हमारा पहले से चल रहा है तो 1 to 7 सभी ट्रांजेक्शन हमें क्वेश्चन में मिल सकता है। तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स की हम फर्दर अकाउंटिंग करेंगे डिफरेंट मेथड्स से। तो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। नाउ अकाउंटिंग मेथड्स मीन्स ब्रांच अकाउंटिंग मेथड्स। जैसा कि बतलाए, ब्रांच का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट लॉस जानना, एक निश्चित समय में क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, इस बात को जानने के लिए 3 पॉपुलर मेथड्स हैं ब्रांच अकाउंटिंग के लिए। इससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हम जानते हैं इनमें से किसी भी मेथड में हम अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ दीज 3 मेथड्स, transactions in between head office and branches are recorded. Transactions of head office is in the knowledge of head office, and on accounting date detail of transactions presented or given by branches in form of statement। दोनों की जानकारी हो जाने के बाद कि हेड ऑफिस ने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किया है और ब्रांच से क्या स्टेटमेंट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन आया है, उसके बाद हर एक इंडिविजुअल ब्रांच की अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस जानने के लिए किसी भी मेथड से हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। याद रखना है, अकाउंटिंग ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल ब्रांचेस। The methods of accounting are: number 1, simple or debtors method. In this method, only one account is prepared to find the profit and losses, that is branch accounts. पहली विधि है हमारा सिंपल या साधारण विधि, देनदार विधि भी इसे कहते हैं। इस विधि में, इस मेथड में एक ही अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट्स, इसी से हमें रिजल्ट की जानकारी हो जाती है। सेकेंड मेथड इज फाइनल अकाउंट मेथड। एज वी नो फ्रॉम वेरी early stage of accountancy study, under final account method, trading and PL account is sufficient to find out profit and loss. Also in this process, under final account method, trading and PL account of individual branch is prepared by head office. After preparing trading and PL account, also branch account is compulsory to prepare. This branch accounting is like personal account. फर्स्ट मेथड में जो ब्रांच अकाउंटिंग बनाए थे वो हमारा लाइक नॉमिनल था। अब डिटेल में इसकी जानकारी आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो बतलाएंगे कि लाइक पर्सनल और लाइक नॉमिनल ब्रांच अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। लेकिन फाइनल अकाउंट मेथड से जब अकाउंटिंग करने के लिए बोलता है तो हमें ट्रेडिंग पीएल भी बनाना होगा और ब्रांच अकाउंट लाइक पर्सनल के रूप में। Third method is known as stock and debtors method. Under this method, total 6 accounts, maximum total 6 accounts is essential to prepare. First account is branch debtors account, second is branch stock account, third is branch expense account, fourth is goods supplied account, fifth number is stock adjustments, और last account is branch adjustments account or branch PL account.
इस लास्ट अकाउंट को बनाने के बाद हमें प्रॉफिट लॉस की जानकारी हो जाती है। निश्चित रूप से हम किसी भी मेथड को अप्लाई करें, जो हमारा रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, ब्रांच अकाउंट में जो रिजल्ट आएगा, या ट्रेडिंग पीएल में, या लाइक पर्सनल ब्रांच अकाउंट में जो रिजल्ट आएगा, या ब्रांच एडजस्टमेंट्स या ब्रांच पीएल में भी जो रिजल्ट आएगा, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का तीनों मेथड से बनाने में सेम रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि तीनों का तीनों मेथड करेक्ट मेथड है। थैंक यू। हो गया एक लेक्चर।